Hi friends, good morning. And I'm not talking in Hindi because I don't know that much Hindi. So I want to show you this how this car is hanging from a charger. ये देखो ये देखो टाई हो गया है इधर और मैं इस कार से खेलता हूँ. मेरे पास 3 कार इधर है. My mom is in other bathroom and my sister is also in the other bathroom. My mom is in this bathroom and my sister is in that bathroom bathing. And my father is not there, so I'm alone in this room. And when my mother comes, she'll do shampoo on my hair, which I don't like because I know how to do shampoo, but she still will do shampoo. And if you look at green and blue sky, your eye will improve. I like to say every day this. I'm trying to find one quail, but no, there is no pigeon, there is no crow, there is no birds here. And cats live down there. That hut, they live down there. Now they're gone. They're gone to that place over there. That place. They're going to come back. When it's evening or night time or afternoon, they're going to come back in this house. First people were living in this, 2 people. Then they went off. Cats live there only now. And I'm doing vlogging. I don't know if she will keep this part or not. Yeah, I hope she keeps this so you can see me. My mother is bathing, so I am happily doing vlogging because I like doing vlogging. No one can stop me. Yay! I wish the tree was closer and smaller from here and this closer so I can grab one coconut. No, no, I can't grab one. And this is me. This is me and this is my sister when she was small. This is me as a baby. I almost forgot something. This is my car collection. And this is my dog. This is my dog. And this is my cars. And I have 2 lovebirds. Those 2. I can remove them and play with them. And that's my tree. Hello. I want to wear it and show to you how I look. Wait. Wait. Hello. Hello. And this other car. Yeah. This is the monster car. I love this car so much. But the remote control works, but here in this car battery has somewhere lost. Gone. Battery. ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ବଟ୍ ମୋତେ ମିଳୁନି ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଚଲେଇ ପାରେନି ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଆଉ ଚଲେଇ ପାରେନି. It's very very sad. I love this car so much. One day I lost the battery. And this car also. It's truck. This is this a car? Wait, is this a car? I think this is a monster truck, not a car. This is a truck which I can open this. I can keep only 2 cars. Here one and here one. And I can also bend this. Because if I bend like that, it is going to launch one car. So, wait. I want to show you something. Wait, don't skip this. I'll come back. Getting back. Hello. Ow.
It launched. But I have to do from here. Yay! I love this truck. At the back side you cannot launch. Let me try. You can launch a little bit. But only in the front. If you keep like this, it will only go like, it will slide over like this. So this is not a launching pad. It's just for keeping cars. Yay! And this car belongs to this truck that I got two cars in this truck. One this car and one this car. Truck. This truck came with this car. You can try out with any car. You can try this. Wait, can I? Oh yeah, I can put this. The wheel is not here. So yeah. It's like we can keep 4 cars because only 3 cars. Here one will put, and here one, and here one. So this is one car, this is one car, and this is one car. 3 cars. Or we can just, fit 4 cars, because when I did this, there's more space. So yes, we can fit 4 cars. When I do this, it's going to fall off. So yeah, I'm going to place it like this. Yay! Only thin cars can fit, not like this one. This is too fat. Only thin cars like this, slim. This one is too high. This one is too low. So only low cars can fit. So go back. Go back. Hope you like this video. Bye. I have 5 words for you. Meaning. 5 words for you. It is meanings. Don't ask to Google. Messy, jiffy, hype, partition, hollow. Those 5 words you have to say the meaning of it. फिर से बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अभी ना मेरे ब्लॉगिंग चैनल में ये अभी केबीसी होने वाला है, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति, बाबू 1-1 करोड़ का इनाम देगा बाबू। हाँ, अभी बाबू का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मेरे ब्लॉग चैनल में ना बाबू क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, सब ब्लॉग चैनल में क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो आज का क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए बच्चे लोग, ठीक है। आप लोगों को बाबू एक क्वेश्चन आज फिर से पूछेगा और आपको आंसर देना है। पूछो बाबू। Messy, jiffy, hive, partition, hollow. Don't ask your mother or Google and your father. अच्छा, मैं अभी मैं बोलने वाली थी कि मदर को गूगल को नहीं पूछेगा पर फादर को पूछ सकता है, और सिस्टर। हाँ, बाबू बहुत क्लेवर है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ज़रूर बताइए। और सो सॉरी, मैंने ना 3-4 दिन से हिंदी में ब्लॉग नहीं दी थी क्योंकि एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये नेक्स्ट वीक ना मेरी त्रिशा की बर्थडे आ रहा है, सितंबर 20। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ ना। तो थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत। और जो बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, सारे बच्चे लोग, छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सारे बच्चे दे दीजिए मेरे बाबू का क्वेश्चन का आंसर, जिनको आता है, ठीक है। उसको खुशी मिलता है। पता, मैं गई थी नहाने के लिए, वो अपने आप ब्लॉगिंग कर लिया था और बोला था भी कि मम्मी इसको डिलीट मत करना, मेरी ब्लॉग को छोड़ना। तो मैं रखी थी ब्लॉग, जब मैं ब्लॉग में देती हूँ ना तो बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए उसका क्लिप रखी थी कि एक्स्ट्रा डाल दूंगी करके। तो आज ब्लॉग में फाइनली डाल दी। वो मुझे डेली पूछता है कि मम्मा मेरा ब्लॉग कब आएगा, मुझे कब दोस्त लोग देखेंगे, मेरा ब्लॉग को कब देखेंगे। मैं लाएगा, तेरा भी ब्लॉग आएगा। तो आज आ जाएगा बाबू का ब्लॉग। और आज वो तो 4-5 बार ब्लॉग देखेगा और आप लोगों का कमेंट पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी सुबह हो गया है, सुबह सुबह मतलब 9-9:30 ऐसे हो गया है। और अभी ऑफिस भी चले गए हैं, लेमन राइस उनको दी थी तो वो चले गए खाकर। ये तो आज का ब्लॉग नहीं है फ्रेंड्स ये तो 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है। मैं शूट कर लेती हूँ 2-3 दिन नहीं, वो शायद 4-5 दिन पहले मैं कब बनाई शूट की थी, मैं खुद ही भूल गई हूँ पता है। तो शूट की थी पर मैं एडिट नहीं कर पा रही से बोली थी ना, तो मैं आज एडिटिंग हिंदी ब्लॉग के लिए करने के लिए टाइम मिला तो आज कर रही हूँ। और सुबह का टाइम है तो अभी चले गए 15-20 मिनट हो गया है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू करूँगी। और आज पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगा दूंगी उस दिन, आज तो नहीं, उस दिन जिस दिन झाड़ू लगाई थी ना उस दिन पोछा नहीं लगाई थी, सिर्फ झाड़ू लगाई थी। अब तो आज मेरा ऑडियो ब्लॉग देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो डाइनिंग टेबल है ना इस साइड आ गया है, पहले उस साइड था। अभी बस 2-3 दिन से मैं इधर ही लेकर आई हूँ। तो अभी मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ, जैसे डेली रूटीन डाइनिंग टेबल क्लीन करना, और सॉरी डस्टिंग कर ली थी थोड़ा बहुत आज। और डाइनिंग टेबल तो एवरीडे सुबह में क्लीन कर लेती हूँ, तो क्लीन कर रही हूँ। फिर अभी बाबू का क्लास स्टार्ट हो गया तो वो भी बैठ गया क्लास करने के लिए। और त्रिशा का तो ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो जाता है, 8:45 को उसका क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो कर रही है। और बाबू का भी 9:30 को शुरू हो जाता है, तो वो भी क्लास कर रहा है। और ब्रेकफास्ट का तो सबका हो गया। और ब्रेकफास्ट में आज मैं ब्रेड टोस्ट की थी और ब्रेड जाम ही खा लिए थे, और बाकी दूध बच्चे पिए थे, मैं भी चाय पी ली हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है। बाकी अभी डाइनिंग टेबल पोछना हो गया, अभी बस जाऊंगी मैं, झाड़ू लगा दूंगी फटाफट। और बर्तन जो पड़ा है ना बर्तन को क्लीन करूँगी। मतलब रात को तो बर्तन क्लीन हो गया था, बस जो ब्रेकफास्ट में जो खाई हूँ ना वो बर्तन को क्लीन करना है। और सारे बर्तन को ना मेरे काउंटर टॉप में भी बहुत सारे हैं, किचन के काउंटर टॉप में, और जैसे नीचे भी रखती हूँ ना बहुत सारे बर्तन निकलता है। ऐसे लगता है कि बर्तन का पहाड़ पता नहीं हम लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और ग्लास कैसे पोंछ के रख रही हूँ, ठीक है। और त्रिशा का बर्थडे आ रहा है ना, तो इस खुशी में ना थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी। तो ये वीक मैं थोड़ा बिजी रहूँगी, और ये वीक और भी कुछ सरप्राइज़ मिलेगा आपको, अभी नहीं बताऊँगी, जब मिलेगा सरप्राइज़ तब देखिएगा, ठीक है। अब किचन में आ गई हो, बाबू मुझे मांगा मम्मी पानी दो, तो मैं उसको पानी देने के लिए बीच में आ गई थी। आधा झाड़ू की थी, फिर और आधा करूँगी। बस किचन का झाड़ू लगा दूंगी तो हो जाएगा। किचन को लास्ट में पोंछ लूँगी, जैसे मैं बोली थी ना, किचन को मैं डेली 1 बार या 2 बार पोंछ लेती हूँ, चाहे हॉल ये एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी मूड होता है तो पोंछती हूँ, कभी ऐसे थोड़ा टायर्डनेस लगेगा ना तो नहीं पोंछती हूँ। तो आज किचन के ऊपर मैं हमेशा पोंछती हूँ, क्योंकि खाना पना बनता है ना तो नीचे कुछ ना कुछ गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है थोड़ा, इसलिए मैं पोंछ लेती हूँ। और ये देखिए ना, बर्तन 2 बेसिन ऑलरेडी भरा हुआ है, और काउंटर टॉप में भी बर्तन है, और सिंक में भी बर्तन है, बर्तन बर्तन बर्तन। सोच रही हूँ सारे बर्तन ना ऊपर किधर उठा के रख लूँ, बस 4 जन के लिए 4 प्लेट 2 कढ़ाई ऐसे रखूँगी, जितना बर्तन रहेगा उतना बर्तन निकलेगा। जैसे अभी तो बहुत महीना हो गया हाउस मेड नहीं आ रहा है, हाउस मेड बोल रही हूँ, मेड नहीं आ रहा है, हाउस हेल्पर नहीं आ रहा है, तो खुद का काम खुद करना पड़ता है। अभी आदत हो गया है, काम करते करते ना अभी आदत हो गया है बस। हाँ, इसलिए ना अगर कोई हेल्प करने के लिए रह जाता है ना, तो मैं भी हिंदी ब्लॉग का भी ना एडिटिंग कर लेती अच्छे से, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता। अभी घर का काम करो, फिर 2 चैनल को एडिटिंग करना थोड़ा सा मेरे लिए नहीं होता, अभी टाइम ही नहीं मिलता है। और तो निकाल के टाइम, आज तो बोली नहीं, आज तो जैसे भी टाइम निकाल के मैं हिंदी ब्लॉग को दूंगी। ये कब का शूट करके रखी थी, नहीं डाली थी, तो आज फाइनली मैं डाल दी हूँ। और क्या करूँगा, अभी वैसे वही काउंटर टॉप पोंछ रही हूँ अच्छे से। फिर अभी जो थोड़ा बर्तन है ब्रेकफास्ट में वही बर्तन बनाऊंगी, तो आज तो बनाऊंगी नहीं, क्लीन करूंगी ठीक है। और ज़्यादा तो गैस भी गंदा नहीं है, थोड़ा जैसे ऊपर भी पोंछ लूँगी गैस को। फिर लंच के लिए बनाना है ना, तो गैस क्लीन रहता है ना, तो किचन जैसे क्लीन रहेगा ना, मुझे फिर से खाना बनाने का ना अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत जो ऑयल वॉयल गिरा था तो उसको भी क्लीन कर रही हूँ। और साइड में ना मैं अदरक को धोकर सुखाई थी, और रात में धोकर मैं सुखा लेती हूँ, तो सुबह ना वो पूरा ड्राई हो जाता है। फिर उसको अच्छे से पोंछ के मैं क्या कवर में डालकर रख देती हूँ फ्रिज में। फिर जब मैं, क्योंकि मुझे ऐसे धो के रख लेती हूँ ना, इंस्टेंट में जब चाय बनाती हूँ ना मैं, तब बिना अदरक का चाय नहीं पी पाती हूँ। तो अदरक होता है धुला हुआ ना, तो बस कूट के डाल दो चाय में, इसलिए मैं ये धोकर ही अदरक रख लेती हूँ। और ऐसे रखेंगे ना बहुत दिन तक अदरक अच्छे से भी रहता है, एकदम फ्रेश रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता है।
तो बस रख लूँगी। और जो किचन में थोड़ा पोछा लगा के, और वो ब्रेड आधा था, वो आधा ब्रेड को वो कवर में डालकर, और ये ग्रीन टी दिखा रही हूँ, ये कब ख़त्म होगा है भगवान। 3-4 पैकेट पी ही नहीं पा रही हूँ, तो वो पड़ा है, तो उसको ख़त्म करूँगी। और देखिए मेरा एक कंप्लेन का डिब्बा ख़त्म हो गया था, तो मैं उस कवर को निकाल के साफ़ करूँ। और मैं इतना खुश हो गई ना, मुझे कोई खजाना मिल गया। एक डिब्बा खाली होता है ना, उसमें कुछ चीज़ भरने के लिए ना मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक डिब्बा मिल गया। घर में ना जितना डिब्बा जितना बर्तन किचन में भी होना हम लोगों के लिए ना लगता है कि कुछ तो नहीं है हमारे पास, हम तो एकदम दुखी है। एक मिल गया एक्स्ट्रा डिब्बा, तो उसमें कुछ रख दूंगी मैं, इसलिए खुश हो गई थी। बाकी फटाफट बर्तन क्लीन कर लूँगी। फिर बर्तन क्लीन करने के बाद एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पनीर मसाला का रेसिपी। एकदम सिंपल सा रेसिपी है, ठीक है। तो आप लोग देखिए। तो अभी बर्तन क्लीन हो जाएगा, फिर किचन क्लीन होने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और देखिए आ गई मैं किचन में, अभी बनाऊंगी पनीर। पर ये क्लिप्स और वो क्लिप्स अलग अलग दिन का है। ये संडे के दिन बनाई थी, ये लास्ट संडे के दिन पनीर। तो पनीर मसाला बनाई थी और साथ में मटन करी भी बनाई थी। जो उड़िया ब्लॉग देखे हो उनको तो मालूम होगा, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरे उड़िया ब्लॉग भी देखिए, ठीक है। मेरी लिंक उड़िया ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। तो चलिए बनाते पनीर की सब्जी, पनीर की मसाला, एकदम सिंपल स्टाइल में। क्योंकि हमेशा पनीर में तो काजू पेस्ट करो, वो सब देकर बनाते, कसूरी मेथी, बटर पनीर, पनीर खुरमा, इस टाइप का बनाते। पर आज मैं सोची एकदम सिंपल सा बनाऊंगी। मटन करी के लिए मसाला पेस्ट की थी, जिंजर, गार्लिक, अनियन और जीरा देकर पेस्ट की थी। तो अभी बोले हाँ ऐसे सिंपल बना लो, आज इतना और तमझम मत करो। तो मैं कैप्सिकम था मेरे पास, तो कैप्सिकम और पनीर का ना एक मसाला बनाऊंगी। बहुत अच्छा हुआ था, एकदम सिंपल हुआ था पर बहुत टेस्टी हुआ था। सच में इंस्टेंट बना लीजिए, जल्दी, कुछ इतना ज़रूरत नहीं है मसाला का भी। तो मैं पनीर को भी चॉप कर ली हूँ, और 2 प्याज, मीडियम साइज़ का 2 प्याज चॉप की हूँ। और बाकी ये कैप्सिकम, 2 कैप्सिकम को ऐसे स्क्वायर शेप में चॉप करूँगी। ये देखिए हो गया है रेडी। तो इसके लिए चाहिए पनीर, कैप्सिकम, टमाटर, 1 बड़ा टमाटर, प्याज, 2 तेज़पत्ता और 2 इलायची, और जिंजर, गार्लिक, क्यूमिन सीड, प्याज का पेस्ट, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, नमक और सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है, आप बटर में बनाइए, घी में बनाइए, और कोई भी कुकिंग ऑयल में बनाइए, वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पैन गरम होने के बाद, कढ़ाई गरम होने के बाद डाल दी तेल गरम होने के बाद डाल दूंगी 2 तेज़पत्ता और 2 इलायची। बस 2 ही डालूंगी मैं। आपका अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो 2 में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी प्याज डाल दूंगी अभी। और प्याज को डालकर क्या करना है, प्याज को डालकर बस लाल लाल होने तक फ्राई करना है, और उसको देखते रहना है, और कुछ काम नहीं है। बस थोड़ा सा नमक दे दूंगी ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगा हमारा। तो देखिए प्याज हो रहा है फ्राई, और जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मैं ढक्कन भी लगा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए जिंजर, गार्लिक, क्यूमिन सीड और प्याज का पेस्ट डाल दूंगी 1 स्पून, ज़्यादा नहीं 1 ही स्पून चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना लाइट रखेंगे पनीर करी को, ज़्यादा मसाला नहीं देंगे। और टमाटर डाल दूंगी, फिर हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और नमक देकर मसाला को भूनूंगी। और मेरे हब्बी को भी ना थोड़ा सा मसाला कम पसंद है, मतलब थोड़ा सा कम दो, ज़्यादा मसाला देते हैं ना वो उनको पसंद नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन है तो तीखा खाते हैं, नॉर्मल तीखा खाते, और मसाला थोड़ा कम दो तो उनको पसंद है। तो ये देखिए अभी डाल दी मैं कैप्सिकम, और कैप्सिकम को ना अच्छे से भी फ्राई करूँगी, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद में इसमें पानी दे दूँगी। तो ये दिखा दी, मैं उस दिन बनाई थी ना मटन, तो मटन को भून रही हूँ। मटन भूनना हो गया है, अब मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूँगी, आलू डालकर पानी दे दूँगी, और फिर वो बॉईल होगा। और मटन का रेसिपी अगर आपको पसंद है, आपको देखना है, तो आप मेरे उड़िया ब्लॉग में देखिए। जो उड़िया समझते, जो उड़िया नहीं समझते, हिंदी ब्लॉग में भी मैं बहुत बार मटन करी का रेसिपी शेयर की हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं होगा तो उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। चलिए फिर उसमें पानी दे देते और मटन के तरफ फोकस करते हैं। आज मटन का रेसिपी दे रही हूँ, चिकन सॉरी पनीर का रेसिपी दे रही हूँ। मटन मेरे मुंह से में निकल रहा है, पनीर का रेसिपी दे रही हूँ, तो पनीर में फोकस करते हैं। और ये देखिए पनीर में मैं पानी दे दी थी, करी में 1 गिलास पानी दी थी, और बाकी अभी पनीर डाल दी हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाली हूँ, पर मैं शायद क्लिप कैमरा ऑन करने के लिए भूल गई थी। तो गरम मसाला 1 टीस्पून दीजिए, कोई भी ब्रांड का गरम मसाला दीजिए, देकर थोड़ा सा फिर बॉईल आने के बाद पनीर को बंद कर दीजिए। और ये देखिए मटन
हो गया है और पनीर भी हो गया है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, ऐसे पूरा ये क्या लटपट 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 चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा पतला पतला पनीर में अच्छा नहीं लगेगा। और अभी लंच टाइम हो गया है तो लंच करेंगे सब, तो सबके लिए मैं खाना दे रही हूँ। पहले मैं हब्बी को दे दूँगी उनका वेज थाली, दाल चावल और पनीर के करी, बस इतना ही चाहिए ये और कुछ नहीं था उस दिन, संडे के दिन। और पनीर का करी भी उनके लिए निकाल के उनको दे दूँगी। फिर हम लोग टूट पड़ेंगे मटन के ऊपर। और मैं तो नहीं खाई थी पनीर, तो हब्बी बोले थे कि बहुत अच्छा हुआ था। मैं उस दिन ना सच बोलूं एक भी पीस में ट्राई नहीं की थी, क्योंकि मटन था ना, मटन जब होता है ना मुझे इतना मतलब और कुछ ना खाने का मन नहीं होता है। तो बच्चे खाए थे, हब्बी खाए थे, पर मैं पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई थी। पर हब्बी बोले थे कि बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा बना था करके। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।